Hello, students. Today we'll discuss the concept of mass media. In this lecture, we'll try to understand the meaning of mass media, different types of mass media, and the role played by mass media in the political system. In this lecture, we'll also try to discuss various theories relating to role of mass media, and we'll try to focus also on how the emergence of new media, that is internet media, social networking sites, blogging, has made an impact on the political process, political behavior, and as such to the whole political system. We'll also try to understand the downside of this new media. So, to begin with the meaning of mass media, before that, we need to understand that mass media has become the most important agency in the modern society for creating awareness about any particular issue, because you see mass media do what making our opinion about anything, we need to know the different dimension of that particular issue. And mass media, through its role of information sharing, it makes us aware about a particular issue, and on the basis of that information we make our opinion for a particular issue. Apart from this, mass media plays a very significant role in setting social agenda. That means what is considered important, significant in society, and as well as in the political sphere. It not only gives us information, it also shapes our preferences, our likings and dislikings, our attitudes. And so, this way, in making public opinion, in shaping social agenda, mass media plays a very significant role. It also shapes our attitude towards the political system. As we had seen, there are three types of orientation towards the political system: cognitive, affective, and evaluative. How much we know about the political system, how we feel attached to the political system, and what is our evaluation about the political system. These three orientations are shaped to a large extent by mass media. So, mass media also shapes political culture. However, when we talk about the role of mass media in political system, we need to keep one thing in mind, that what role mass media will play in the political system also depends on the nature of political system. To illustrate the role which it plays in a democratic political system, the same type of role it may not play in the authoritarian system. So now we'll discuss the meaning of mass media. When we talk about meaning of mass media, we can see that mass media term is made of two words. जब हम जन संचार की बात करते हैं तो हम दो शब्दों को वहाँ देखते हैं, एक जन और दूसरा संचार। जन का अर्थ हम जानते हैं, सामान्य रूप से जन का मतलब है जनसंख्या का एक बड़ा भाग, और जन के अर्थ पर हमने विस्तार से चर्चा की थी जब हम जन समाज पर चर्चा कर रहे थे। तो जन का अर्थ है जनसंख्या का एक बड़ा भाग, और मीडिया का अर्थ है संचार का माध्यम, वो माध्यम जिसके द्वारा सूचनाएं भेजी और प्राप्त की जाती हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मास मीडिया संचार के ऐसे साधन की ओर संकेत करता है जिसके माध्यम से
सूचनाएं एक बड़े समूह तक पहुंचाई जाती हैं, जनसंख्या के बड़े भाग तक पहुंचाई जाती हैं। महत्वपूर्ण क्या है कि मास मीडिया के द्वारा जो सूचनाओं का संप्रेषण होता है, जब हम व्यक्ति और व्यक्ति के बीच के संबंध की बात करते हैं, वहां पर भी सूचनाओं का संप्रेषण होता है। मास मीडिया में जब सूचनाओं का संप्रेषण होता है तो उसकी एक विशिष्ट प्रकृति होती है। उसमें एक के द्वारा बहुतों को, बहुत बड़े समूह को एक साथ सूचना पहुंचाई जाती है या संदेश पहुंचाया जाता है। ये एक न्यूज़ रिपोर्टर हो सकता है, स्क्रिप्ट राइटर हो सकता है, एक्टर हो सकता है, या ऑथर हो सकता है पुस्तक का, जो सूचनाओं का संचार कर रहा है एक के द्वारा बहुतों को। दूसरी ओर यहाँ पर जो संचार होता है वो एक तरफा होता है। एक तरफा का अर्थ ये है कि सूचना भेजने वाला जिस समूह को सूचना भेज रहा है या संदेश भेज रहा है, वो संदेश लेने वाला तुरंत उस पर प्रतिक्रिया नहीं कर सकता। जैसे जब हम अखबार पढ़ते हैं तो हमारे तक सूचनाएं पहुंचती हैं, हम तुरंत उस पर प्रतिक्रिया नहीं कर सकते, क्योंकि जो सूचना देने वाला है या भेजने वाला है वो हमसे काफ़ी दूरी पर है और हमारे पास कोई ऐसा नेटवर्क नहीं है जिसके माध्यम से हम इमीडिएट रिस्पॉन्स करें। तो मास मीडिया में एक बहुत बड़े समूह तक सूचना या संदेश पहुंचाया जाता है, एक के द्वारा बहुतों को पहुंचाया जाता है, और इसमें प्राप्तकर्ता के तरफ से तुरंत प्रतिक्रिया संभव नहीं है, इसलिए ये संचार एक तरफा होता है। तो इस प्रकार से मास मीडिया, अगर हम परंपरागत दृष्टि से देखें तो मास मीडिया की 3-4 विशेषताएं हैं। पहला, सूचना भेजने वाले और प्राप्त करने वाले के बीच में व्यापक दूरी। दूसरा, तकनीक। मास मीडिया के जितने भी तरीके हैं वो सूचना भेजने के लिए उसमें किसी न किसी तकनीक का प्रयोग होता है। तीसरा, स्केल। एक बहुत व्यापक स्तर पर सूचना का संचार किया जाता है। चौथा, कमोडिटी से अर्थ क्या है कि मास मीडिया के माध्यम से सूचना प्राप्त करने के लिए आपके पास उसके साधन होने आवश्यक है। अगर आपको टेलीविज़न के माध्यम से सूचना प्राप्त करनी तो आपके पास टेलीविज़न होना चाहिए, अखबार के माध्यम से सूचना प्राप्त करनी है तो अखबार होना चाहिए। तो ये तो परंपरागत दृष्टि से हम मास मीडिया की विशेषताएं बताते हैं। पर 1990 के दशक या उसके थोड़े पहले से, जब से कंप्यूटर नेटवर्क आ गया, तब से मास मीडिया की प्रकृति में बहुत अधिक परिवर्तन आया। और अब ये कहना कि मास मीडिया के माध्यम से एक के द्वारा बहुत को सूचना दी जाती है, ये पर्याप्त नहीं है। अब इस नए मीडिया जो हमें सोशल नेटवर्किंग साइट्स के रूप में, ब्लॉगिंग के रूप में, इंटरनेट मीडिया के रूप में दिखता है, उसमें हम ये पाते हैं कि इसमें एक के द्वारा बहुतों को, एक के द्वारा एक को, बहुतों के द्वारा एक को और बहुतों के द्वारा बहुतों को, ये व्यापक आयाम है जहां सूचनाओं का संप्रेषण हो सकता है। इस प्रकार इंटरनेट मीडिया और सोशल नेटवर्क मीडिया ने एक बहुत व्यापक परिवर्तन लाने का काम किया है। अब मास मीडिया के माध्यम से होने वाला संचार एक तरफा संचार नहीं है, क्योंकि जब हम सोशल मीडिया को देखते हैं तो हम क्या पाते हैं, जैसे ही सूचना देने वाला सूचना देता है या संदेश भेजने वाला संदेश भेजता है, संदेश प्राप्त करने वाला तुरंत उस पर प्रतिक्रिया दे सकता है। वास्तव में न्यू मीडिया के आने के बाद जो सूचना के उत्पादक और सूचना के उपभोक्ता, जो परंपरागत व्यवस्था में या परंपरागत मास मीडिया का जो परंपरागत स्वरूप था, उसमें हम देख रहे थे कि एक और न्यूज़ क्रिएट करने वाला है, वो प्रोड्यूसर है, और दूसरी ओर कंज्यूमर है जो न्यूज़ को रिसीव करता है। इन दोनों की भूमिकाएं बिल्कुल अलग है। कंज्यूमर का प्रोड्यूसर पर नियंत्रण नहीं है, कंज्यूमर प्रोड्यूसर को रिस्पॉन्स नहीं कर सकता। पर न्यू मीडिया के आने के बाद हमने क्या देखा कि प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच का ये जो द्वैध है वो धीरे धीरे कम
महत्वपूर्ण होता जाता है। क्यों? क्योंकि सोशल मीडिया या जो न्यू मीडिया का फील्ड है उसमें प्रत्येक व्यक्ति एक समय पर प्रोड्यूसर है और एक समय पर कंज्यूमर है। तो इस प्रकार नए मीडिया के या न्यू मीडिया के आने के बाद मास मीडिया के चरित्र में काफ़ी परिवर्तन आया है। अब हम थोड़ी चर्चा करेंगे कि मास मीडिया के अलग अलग प्रकार क्या हैं। पहला तो ट्रेडिशनल मीडिया। ट्रेडिशनल मीडिया या परंपरागत मीडिया से अर्थ क्या है? जो मास मीडिया के आधुनिक संसाधनों के आने के पहले भी कहीं ना कहीं ये संप्रेषण हो रहा था। वो संप्रेषण का तरीका अलग था। वो किस रूप में था? परंपरागत लोक कला माध्यमों से, नृत्य के माध्यम से, संगीत के माध्यम से, ग्रामीण थिएटर के माध्यम से जिसको हम नौटंकी भी कहते हैं, या स्ट्रीट प्ले के माध्यम से व्यापक समूह तक सूचना प्रेषित करने का काम किया जाता था। इसके माध्यम से सूचनाएं संप्रेषित की जाती थी, संदेश दिए जाते थे, जागरूकता उत्पन्न की जाती थी, शिक्षित करने का काम और साथ में साथ मनोरंजन करने का कार्य भी किया जाता था। ये सारे कार्य ओरल ट्रेडिशन के माध्यम से या मौखिक परंपरा के माध्यम से होते थे। इस ट्रेडिशनल मीडिया की एक विशेषता ये थी कि एक सरल था, दूसरी ओर जो मैसेज भेजने वाला है और जो मैसेज रिसीव करने वाला है वो एक दूसरे से, उनके बीच में इतनी दूरी नहीं थी जैसी कि हमें मॉडर्न मास मीडिया में देखने को मिलती है। साथ ही साथ जो ट्रेडिशनल मीडिया थी उसमें इंफॉर्मेशन भेजने वाला या मैसेज भेजने वाला, या जिसको हम प्रोड्यूसर ऑफ इंफॉर्मेशन या न्यूज़ कह रहे हैं, वो ऑडियंस के हिसाब से कंटेंट को चेंज कर सकता था। इसका मतलब जो ट्रेडिशनल मीडिया है वो स्वरूप में बहुत सरल था। अब दूसरी ओर जो हम मॉडर्न मास मीडिया कहते हैं उसके हम 3 प्रकार देख सकते हैं। पहला है प्रिंट मीडिया। प्रिंट मीडिया का मतलब है अखबार, मैगजीन, किताबें। ये माध्यम सूचना को प्रेषित करने का, लेखन के माध्यम से सूचना का प्रेषण करते हैं। और अगर हम न्यूज़पेपर को देखें तो हम न्यूज़पेपर में देखते हैं कि वो मनोरंजन, समाचार, शिक्षण, जागरूकता, इन अनेक पक्षों को शामिल करता है। बुक्स या किताबें चूँकि शोध पर आधारित होती हैं तो किताबों के माध्यम से आने वाली जो सूचनाएं होती हैं वो अधिक गहरी सूचना होती है। पर प्रिंट मीडिया के साथ इतना स्पष्ट है कि प्रिंट मीडिया के ये माध्यम मुख्यतः या विशेषकर जो शिक्षित वर्ग है उस तक ही अपना प्रभाव स्थापित करने में सफल हो सकते हैं, क्योंकि जो अशिक्षित वर्ग है उसके लिए लेखन के माध्यम से किया गया संप्रेषण कारगर नहीं हो सकता। इस कमी को पूरा करने के लिए जो दूसरा माध्यम है वो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया फिल्म के माध्यम से, रेडियो, टेलीविज़न, ये सब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंतर्गत आते हैं। प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जो मूल अंतर है वो ये कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ऑडियो विजुअल मोड को अपनाता है, यानी दृश्य और श्रव्य माध्यम को अपनाता है। इसकी वजह से इसके द्वारा भेजा गया कंटेंट अधिक इंगेजिंग होता है प्रिंट मीडिया की तुलना में। दूसरा, इसकी पहुंच बहुत बड़े वर्ग तक हो सकती है, क्योंकि जहां प्रिंट मीडिया केवल शिक्षित वर्ग को अधिक प्रभावित कर सकता है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया विभिन्न वर्गों तक अपना प्रभाव पहुंचा सकता है। इसलिए इसके ऑडियंस का जो रेंज है या जो स्केल है वो बहुत व्यापक होती है और ये अधिक इंगेजिंग होता है, क्योंकि स्वाभाविक है जब ऑडियो विजुअल एड के साथ हम किसी चीज़ से जुड़ते हैं तो उसका प्रभाव हमारे ऊपर अधिक पड़ता है। और तीसरा, जिसकी बात मैं अभी कह रही थी, न्यू मीडिया, ईमेल, वेबसाइट्स, ब्लॉगिंग, सोशल नेटवर्किंग साइट्स, इंटरनेट प्रोटोकॉल, टेलीविज़न, इंटरनेट रेडियो, जो अभी कुछ वर्षों में, आप पिछले वर्षों में देख रहे हैं, बहुत तेज़ी से इसका विकास हुआ है। तो ये मुख्य रूप से मास मीडिया के अलग अलग प्रकार हैं। अब हम देखेंगे सामान्य रूप से जनसंचार की भूमिका क्या क्या होती है। पहली भूमिका सूचना देने की। सूचना का माध्यम हमारे लिए मास मीडिया ही है। दूसरा, जन को शिक्षित करने की। जन को शिक्षित करने में मास मीडिया की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जो हमारी
व्यवस्थित शिक्षा है वो स्कूल और कॉलेज के माध्यम से होती है, पर उसके बाद जो निरंतर शिक्षा की प्रक्रिया होती है उसमें मास मीडिया की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि विभिन्न विषयों पर हमें सूचना देकर वो उन विषयों के प्रति, बहुत सारे विषय जो हमें नहीं पता होते हैं उसके प्रति भी मास मीडिया हमें जागरूक करता है और इस रूप में हमें शिक्षित करता है। इसके अतिरिक्त जो औपचारिक शिक्षा है, मास मीडिया उसका भी माध्यम बन सकता है। कैसे? अगर हम अवेयरनेस या एजुकेट करने की बात करें तो अभी वर्तमान समय में जब हम कोविड-19 क्राइसिस से गुजर रहे हैं तो उस बीमारी के स्वरूप के बारे में, उस बीमारी से बचने के तरीके के बारे में ये सारी सूचनाएं हमें सबसे अधिक कहाँ से मिल रही हैं? उस बीमारी के अलग अलग स्तरों के बारे में, उस क्षेत्र में होने वाली जो चिकित्सकीय प्रयोग हैं उन सब की सूचना, उन सब की के बारे में एजुकेट करने का काम हमें मास मीडिया ही कर रहा है। एक पक्ष तो ये, और दूसरा जब मैं कह रही हूँ कि कई बार मास मीडिया औपचारिक शिक्षा के लिए भी योगदान दे सकता है या उसमें भी असिस्ट करने का काम कर सकता है, तो अभी वर्तमान समय में आप ये देख रहे हैं कि जब कक्षाएं सुचारू रूप से नहीं चल रही हैं और उसमें हम ऑनलाइन शिक्षा की बात कर रहे हैं, बहुत बड़े समूह के पास वो संसाधन नहीं है, तो अब धीरे धीरे मास मीडिया में कई न्यूज़ चैनल, कई चैनल्स के माध्यम से लोकल लेवल पे या दूरदर्शन के स्तर पर औपचारिक शिक्षण टेलीविज़न के माध्यम से किया जा रहा है। तो इस तरीके से हम अभी वर्तमान समय में विशेषकर देख सकते हैं कि मास मीडिया मास को एजुकेट करने में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तीसरा, सामाजिकरण और राजनीतिक सामाजिकरण। जैसा हम जानते हैं, सामाजिकरण का अर्थ होता है जो समाज के मूल्य, आस्थाएं, विश्वास है उनको सीखने की प्रक्रिया, और वही बात हम राजनीतिक सामाजिकरण के संदर्भ में भी करते हैं कि जो हमारे राजनीतिक मूल्य, आस्थाएं और विश्वास है उनको सीखने की प्रक्रिया। इसमें मास मीडिया की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। अगर हम भारत जैसे देश को देखें जहाँ विविध समूहों के अलग अलग सांस्कृतिक दृष्टिकोण हैं, उन सभी दृष्टिकोणों के बारे में जानने का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म हमें मास मीडिया के रूप में मिलता है। और जो राजनीतिक व्यवस्था के मूल्य हैं, आस्थाएं हैं, विश्वास हैं, वो भी मास मीडिया के माध्यम से संप्रेषित किए जाते हैं। इस प्रकार मास मीडिया राजनीतिक सामाजिकरण और सामाजिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इंटरटेनमेंट या मनोरंजन, इसकी व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है। हम सब जानते हैं कि मास मीडिया, चाहे वो न्यूज़पेपर हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, टेलीविज़न के रूप में, रेडियो के रूप में, चाहे न्यू मीडिया हो, इन सब में एक बहुत महत्वपूर्ण पक्ष सूचना देने का है और उतना ही महत्वपूर्ण पक्ष मनोरंजन प्रदान करने का है। तो मनोरंजन प्रदान करने का कार्य भी मास मीडिया का है। जनमत को आकार देना, हम जब इसके पहले जनमत पर चर्चा कर रहे थे तो हम जनमत की प्रमुख एजेंसीज में मास मीडिया की हमने बात की थी। जनमत को आकार देने में मास मीडिया की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि जनमत के लिए हमने पहले भी देखा, जनमत के लिए यह आवश्यक है कि सामान्य हित का एक मुद्दा होना चाहिए। उस मुद्दे के विभिन्न पक्षों के बारे में जब तक हमारी जानकारी नहीं होगी, जब तक हमें पर्याप्त सूचनाएं नहीं होगी, तब तक उस पर जनमत बनना संभव नहीं है। मास मीडिया वो माध्यम है जो विभिन्न सूचनाओं को उपलब्ध कराता है और उसके आधार पर जनमत को के निर्माण की स्थिति देता है। और दूसरी ओर उन सूचनाओं के साथ साथ कहीं ना कहीं मास मीडिया जनमत को आकार देने का भी काम करता है। जब हम ये कहते हैं कि वो सूचनाएं प्रदान करता है तो हम ये कह सकते हैं वो सामग्री दे रहा है जिसके आधार पर जनमत का निर्माण होगा। पर जब हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या प्रिंट मीडिया के माध्यम से जो सूचनाएं हमें मिलती हैं, किसी विषय के जो आयाम हमारे सामने प्रस्तुत किए जाते हैं, तो कई बार ये भी होता है कि जनमत किस दिशा में जाएगा ये निर्धारित करने का काम भी मास मीडिया ही करता है, जैसा हम टेलीविज़न डिबेट्स पे देखते हैं, क्योंकि उससे संग संग में हमारी एक राय भी बनती है। उसके साथ साथ लोकतंत्र में जब हम इसको फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं, तो मास मीडिया सरकार के उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने का काम करता है, क्योंकि सरकार पे यदि एक और विपक्षी दल नियंत्रण करते हैं, जनमत नियंत्रण करता है, तो सबसे महत्वपूर्ण नियंत्रणकारी तत्व मास मीडिया होता है। क्योंकि यदि सरकार की नीतियों में कहीं त्रुटि है,
उनकी योजनाओं में कहीं कमी है, तो उन सबको प्रकाशित करने का काम मास मीडिया करता है। और इस प्रकाशन के माध्यम से मास मीडिया एक उत्तरदायी सरकार को सुनिश्चित करता है, जिसको हम कहते हैं मास मीडिया डेमोक्रेसी में वॉचडॉग का की भूमिका निभाता है। बहुत महत्वपूर्ण भूमिका मास मीडिया की एजेंडा सेटिंग में। हम पहले ये समझे एजेंडा सेटिंग का अर्थ क्या है। एजेंडा सेटिंग से अर्थ ये है कि समाज में कौन से मुद्दे महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं, राजनीतिक व्यवस्था की दृष्टि से कौन से मुद्दे महत्वपूर्ण हैं। ये जो महत्वपूर्ण और गैर महत्वपूर्ण का निर्धारण है, उसमें मास मीडिया की भूमिका बहुत अधिक होती है, क्योंकि जब किसी विषय को मास मीडिया, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, वो प्रकाशित करता है, उसके महत्व को स्थापित करता है, तो स्वाभाविक रूप से वो हमें अधिक महत्वपूर्ण लगने लगता है। तो हमें कौन सा विषय अधिक महत्वपूर्ण लगे और कौन सा कम महत्वपूर्ण लगे, इसको निर्धारित करने में भी मास मीडिया की भूमिका होती है। आप एक उदाहरण से समझ सकते हैं कि यदि कोई मुद्दा न्यूज़पेपर के पहले पेज पे होता है तो वो हमारा ध्यान आकर्षित करता है, और अगर कोई मुद्दा उसके आखिरी पेज पे किसी किनारे के कॉलम में होता है तो वो हमारा ध्यान आकर्षित नहीं करता। यदि किसी विषय पर न्यूज़ चैनल पर रोज डिबेट आती है तो वो हमारा ध्यान आकर्षित करता है, हमें वो महत्वपूर्ण लगने लगता है। स्वाभाविक रूप से एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया होती है जिसमें हम ये सोचते हैं ये मुद्दा सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार मास मीडिया एजेंडा सेटिंग में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अभी अगर हम वर्तमान समय में देखें तो धीरे धीरे मास मीडिया की भूमिका और भी बहुत महत्वपूर्ण होती जा रही है। एंड्रयू हेवुड ने इसके लिए 3 परिस्थितियों को उत्तरदायी माना। पहला, हेवुड का मानना है कि धीरे धीरे जो राजनीतिक सामाजिकरण की परिवार, सामाजिक समूह जैसी जो संस्थाएं हैं, उनकी भूमिका घटती जा रही है और सोशल मोबिलाइजेशन भी बढ़ रहा है। व्यक्ति परिवार से मिले हुए जो मूल्य है उसके आधार पर राजनीतिक निर्णय नहीं लेना चाह रहा है, बल्कि वो कैलकुलेटिव डिसीजन लेकर निर्णय लेना चाह रहा है अपने पॉलिटिकल प्रेफरेंसेस को डिसाइड करने में। यानी उसकी राजनीतिक वरीयताओं को निर्धारित करने में वो इस बात का ध्यान रख रहा है कि उसके कैलकुलेटिव पार्ट को समझने की कोशिश कर रहा है। और जब वो कैलकुलेटिव पार्ट को समझने की कोशिश कर रहा है तो उसके लिए आवश्यक है कि उसके पास संपूर्ण सूचनाएं हों, और ये सूचनाएं मास मीडिया के माध्यम से मिलती हैं। तो यदि हम राजनीतिक व्यवहार के संदर्भ में देखें या वोटिंग बिहेवियर के संदर्भ में देखें तो हमने एक परिवर्तन देखा। हमने ये परिवर्तन देखा कि कुछ दशकों पहले परिवार में किसी भी दल के प्रति जो आस्था आप कह सकते हैं, या जो एक प्रतिबद्धता का जो तत्व था या झुकाव का जो तत्व था, वो पीढ़ी दर पीढ़ी चला आता जाता था। पर अब धीरे धीरे इस मतदाता निर्णय लेते वक्त उस मूल्य से निर्देशित नहीं होता, बल्कि वो अपने हित को ध्यान में रखकर निर्णय लेना चाहता है, जिसको मैं कह रही हूँ कैलकुलेटिव डिसीजन करना चाहता है। इसके लिए उसे सूचनाएं चाहिए, वो मास मीडिया के माध्यम से मिलती है। दूसरा एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है कि जब से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या स्पेशली जब से टेलीविज़न, जो ऑडियो वीडियो ऑडियो विजुअल दोनों माध्यम है, जब से वो माध्यम आया उसके बाद, और फिर न्यू मीडिया आया, इन दोनों के आने के बाद मास मीडिया की जन तक पहुंच बहुत अधिक बढ़ गई, सभी वर्गों तक पहुंच बढ़ गई। क्योंकि संभवतः कोई भी ऐसा घर ना हो जहां टेलीविज़न ना हो। यानी मास मीडिया को लोगों के घर घर तक प्रवेश करने के लिए टेलीविज़न के माध्यम से और वर्तमान समय में न्यू मीडिया के फॉर्म में उसका समाज में जो पेनेट्रेशन है, समाज में जो प्रवेशन है, वो अधिक बढ़ गया। और जब समाज में उसका प्रवेशन बढ़ा तो स्वाभाविक है उसकी प्रभावित करने की क्षमता भी बढ़ी। जब तक केवल प्रिंट मीडिया का माध्यम था तो हमें ये मानना पड़ेगा कि इस मास मीडिया की पहुंच एक विशेष समूह या वर्ग तक ही थी।
टेलीविज़न के आने के बाद और फिर न्यू मीडिया के आने के बाद इसका प्रसार बहुत तेज़ी से हुआ, और जब इसका प्रसार तेज़ी से हुआ तो इसके प्रभावित करने की क्षमता भी बढ़ी। और तीसरा, धीरे धीरे मीडिया ग्रुप्स बहुत महत्वपूर्ण इकोनॉमिक प्लेयर्स या आर्थिक कर्ता बन गए, और स्वाभाविक है वर्तमान युग में आर्थिक शक्ति का जो धारक है वो बाकी तत्वों को निर्धारित करता है, और मास मीडिया के जो मीडिया ग्रुप्स हैं उनकी बढ़ती हुई आर्थिक शक्ति उनके महत्व को या उनके प्रभाव को भी बढ़ाती है, और उसके व्यापक रोल पर असर या व्यापक भूमिका पर असर पड़ता है। अब हम देखेंगे कि मास मीडिया का समाज में रोल क्या है, की राजनीतिक व्यवस्था में भूमिका क्या है। इसको लेकर अलग अलग मॉडल्स या अलग अलग थियरीज है या अलग अलग सिद्धांत हैं। हम उन विभिन्न सिद्धांतों का विश्लेषण करने का प्रयास करेंगे। पहला मॉडल प्लूरलिस्ट मॉडल या बहुलवादी सिद्धांत है। ये बहुलवादी सिद्धांत ये मानता है कि मास मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर विभिन्न प्रकार के राजनीतिक दृष्टिकोण प्रस्तुत किए जाते हैं, उन पर चर्चा होती है और उस पर बहस होती है। यानी ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ विभिन्न समूहों को अपने मत रखने के लिए स्थान मिलता है। जब हम इस मॉडल को देखते हैं तो हम ये देख सकते हैं कि मास मीडिया को ये मॉडल बहुत सकारात्मक रूप से प्रस्तुत करता है, उसकी भूमिका को सकारात्मक रूप से प्रस्तुत करता है, क्योंकि इस मॉडल के अनुसार ये एक ऐसा माध्यम है जहाँ सबकी समान पहुँच है, विभिन्न दृष्टिकोणों की समान पहुँच है, और यदि विभिन्न दृष्टिकोणों की समान पहुँच है तो स्वाभाविक है ये एक इन्फॉर्म्ड सिटीजनरी यानी ऐसी नागरिकता जिसके पास सभी प्रकार की सूचनाएं हैं उसका निर्माण करता है। और न्यू मीडिया के इमर्जेंस ने इसको और अधिक जो मास मीडिया का प्लूरलिस्टिक कैरेक्टर है या मास मीडिया का जो बहुलवादी चरित्र है उसको और अधिक सशक्त कर दिया है, क्योंकि न्यू मीडिया में सभी समूहों सभी वर्गों की अधिक से अधिक पहुंच है। न्यू मीडिया में सभी समूहों की अधिक पहुंच कैसे है, इसका प्रभाव क्या है, इसको जब हम न्यू मीडिया और पॉलिटिक्स पे चर्चा करेंगे तो हम वहाँ विस्तार में देखेंगे। किंतु इस मॉडल की एक जो कमी है वो ये कि ये मास मीडिया की भूमिका की एक अत्यधिक सरल छवि प्रस्तुत करता है, और कहीं न कहीं मास मीडिया के पीछे जो एक शक्ति का समीकरण काम करता है उसको उद्घाटित करने में ये मॉडल असफल है। और जब ये कहता है कि मास मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ सभी समूहों को, सभी वर्गों को, सभी दृष्टिकोणों को समान पहुँच है, तो कहीं ना कहीं इस बात को अनदेखा करता है कि मास मीडिया कई बार जो प्रो एस्टैब्लिशमेंट भूमिका को निभाता है, यानी जो शक्ति में है, जिनके पास शक्ति है, उनके दृष्टिकोणों को अधिक प्रस्तुत करता है। दूसरा जो सिद्धांत है मास मीडिया की भूमिका को लेकर वो है डोमिनेंट आइडियोलॉजी मॉडल। डोमिनेंट आइडियोलॉजी मॉडल का मतलब क्या है? जो ये कहता है कि मास मीडिया जो शक्तिशाली वैचारिकी है, जो प्रभुत्ववादी वैचारिकी है, उसको प्रस्तुत करता है। ये मॉडल बहुलवादी मॉडल के ठीक विपरीत है। ये मानता है कि मास मीडिया सभी समूहों को समान पहुंच कभी भी नहीं दे सकता, क्योंकि ये मूलतः इसका जो चरित्र है वो अभिजनवादी है, और जहाँ ये अभिजन समूहों अर्थात जो सामाजिक और आर्थिक रूप से शक्तिशाली समूह हैं उनके हितों को प्रोत्साहित करने और उसको रक्षित करने के लिए प्रयासरत होता है। ग्राम्सी जैसे मार्क्सिस्ट आलोचकों ने मास मीडिया को पूंजीवादी हित का प्रतिनिधि माना, और ये माना कि मास मीडिया पूंजीवादी आधिपत्य को बनाए रखने का प्रयास करता है। ये मॉडल ये स्थापित करने की कोशिश करता है कि जो मीडिया हाउसेस हैं उनका स्वामित्व चूंकि पूंजीपति वर्ग के पास है, तो इसलिए मीडिया हाउस उनके हितों
को ध्यान में रखकर एजेंडा सेट करने का काम करता है। इसलिए इसको डोमिनेंट आइडियोलॉजी मॉडल कहा जाता है। ये जो तीसरा मॉडल है जिसको प्रोपेगेंडा मॉडल कहते हैं, वास्तव में ये डोमिनेंट आइडियोलॉजी मॉडल का ही अधिक परिष्कृत रूप है, जिसका विकास नोम चोम्स्की ने किया। इस मॉडल ने ये बताया कि जो सूचनाएं मीडिया से प्रेषित होकर हमारे पास आती हैं, वो सूचनाएं वैसे नहीं आती जैसी वो होती हैं, बल्कि वो अनेक फिल्टर्स से होकर गुजरती हैं, और इन फिल्टर्स में सूचनाओं को एक विशेष रूप दिया जाता है, और विशेष रूप देने की प्रक्रिया में ये जो फिल्टर्स हैं वो कुछ विशेष हितों को संरक्षित करने का प्रयास करते हैं। अब हम समझेंगे वो फिल्टर्स कौन से हैं। तो पहला, किसी भी सूचना का संप्रेषण करते वक्त ये ध्यान रखा जाता है कि जो ओनर कंपनी है उसका व्यापारिक हित क्या है। दूसरा, जो प्रायोजक हैं, जो एडवर्टाइजर्स हैं, उनके दृष्टिकोण और उनकी चिंताओं को के लिए एक विशेष प्रकार की संवेदनशीलता होती है। तीसरा, जो समाचार का स्रोत है या सूचना का स्रोत है वो शक्ति के केंद्रों से होकर गुजरता है, यानी कितनी सूचनाएं जानी है, किस प्रकार की सूचनाएं जानी है, वो शक्ति के स्रोतों से होकर गुजरता है। चौथा, कि जो पत्रकार है, जो स्क्रिप्ट राइटर है, जो न्यूज़ राइटर है, वो स्वतंत्रता की स्थिति में काम नहीं करता, वो एक प्रकार के कई बार दबाव की स्थिति में भी काम करता है, और ये दबाव उन समूहों द्वारा होता है जो समूह अपने हित को सुरक्षित करना चाहते हैं और जो जिनके पास शक्ति है जिसके माध्यम से वो दबाव डाल सकते हैं। और उसके बाद एक विश्वास मार्केट कंपटीशन में और कंज्यूमर कैपिटलिज्म में। कुल मिला के इसका अर्थ ये निकलता है कि इस मॉडल के अनुसार जो सूचनाएं सूचना के तंत्र से होकर गुजरती हैं वो जैसी ही हैं वैसी ही हमारे पास नहीं आती, बल्कि ये जितने विशेष हित बताए गए हैं उन विशेष हितों को ध्यान में रखकर उन सूचनाओं को मैन्युफैक्चर किया जाता है, या कई बार उसे कहीं ना कहीं मोल्ड किया जाता है। इस मॉडल की एक कमी ये है कि ये केवल मास मीडिया की नकारात्मक भूमिका ही प्रस्तुत करता है, जबकि वास्तविकता ये है कि इस बात से को अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि कुछ विशेष वर्गों के माध्यम से विशेषत्वों को मास मीडिया के माध्यम से प्रोत्साहित किया जा सकता है, किंतु साथ ही साथ मास मीडिया प्रगतिशील स्वरों को भी मुखरित करता है, कल्याण के मुद्दों पर भी ध्यान आकर्षित करता है, विकास के मुद्दों पर भी ध्यान आकर्षित करता है। तो ये उसकी एक सकारात्मक भूमिका भी है जो इस प्रोपेगेंडा मॉडल में व्याख्यायित नहीं हो पाती। नेक्स्ट मॉडल है एलीट वैल्यूज मॉडल। इस मॉडल की विशेषता ये है कि ये अभी इसके पहले के जितने मॉडल हैं जो ये निर्धारित करते हैं कि जन संचार माध्यम में के माध्यम से जो सूचनाएं जाती हैं उसमें एक तरह का राजनीतिक पूर्वाग्रह होता है, विशेष हित का पूर्वाग्रह होता है, और ये इस बात से निर्धारित होता है कि उसका स्वामित्व किसके पास है। एलीट वैल्यू मॉडल से परे ये बात कहता है कि जो एडिटर्स हैं या जो पत्रकार हैं या जो ब्रॉडकास्टर्स हैं वे बहुत हद तक एक प्रकार की व्यावसायिक स्वतंत्रता का अनुभव करते हैं या व्यावसायिक स्वतंत्रता की स्थिति में काम करते हैं। इसका मतलब क्या है कि उनके जो दिन के जो कार्य होते हैं, जो न्यूज़ मेकिंग का जो कार्य होता है, उसके हर पक्ष पर शक्तिशाली समूहों का नियंत्रण नहीं होता। जो मास मीडिया में जो राजनीतिक पूर्वाग्रह होता है वो वास्तव में इस मॉडल के अनुसार मीडिया के ओनरशिप से नहीं आता, या मीडिया हाउस के ओनरशिप से नहीं आता, मीडिया हाउस के मालिकों की ओर से नहीं आता, बल्कि जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं, जो उच्च अधिकारी हैं मीडिया हाउस में, जर्नलिस्ट, ब्रॉडकास्टर्स, एडिटर्स, उनकी
उनका भी अपना एक वर्ग मूल्य होता है, और वो वर्ग मूल्य उनके द्वारा जिस प्रकार से समाचार को प्रस्तुत किया जाता है उस पर प्रभाव डालता है। इस मॉडल के अनेक पक्ष हैं। जैसे इसका एक पक्ष ये कहता है कि जो मास मीडिया है वो समाजवादी विरोधी है, वो रूढ़िवादी है। क्यों? क्योंकि वो उसमें जो सीनियर ऑफिशियल्स होते हैं वो मूलतः मध्यम वर्गीय पृष्ठभूमि से आते हैं, और इसलिए उनका जो दृष्टिकोण होता है वो रूढ़िवादी होता है, और इसका असर मास मीडिया द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले समाचारों पर भी पड़ता है या सूचनाओं पर भी पड़ता है। दूसरा दृष्टिकोण ये मानता है कि मीडिया वास्तव में जो विश्वविद्यालय से पढ़े लिखे जो लिबरल इंटेलेक्चुअल्स हैं उनके विचार का प्रतिनिधित्व करता है। ये कंजर्वेटिव व्यू है। और तीसरा फेमिनिस्ट व्यू या नारीवादी दृष्टिकोण, वो ये कहता है कि मीडिया हाउस के जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं वो मुख्यतः मेल होते हैं, पुरुष होते हैं, और इसलिए वो केवल पितृसत्तात्मक हितों को ही प्रस्तुत करते हैं, और जहां अधिकांशतः महिलाओं के मुद्दों और उनकी चिंताओं को किनारे रखा जाता है। तो ये जो एलीट वैल्यू मॉडल है वो ये समझाने की कोशिश करता है कि जो भी पॉलिटिकल बायस आता है वो पॉलिटिकल बायस का सोर्स मीडिया हाउस के ओनरशिप से नहीं आता, बल्कि उन सीनियर ऑफिशियल्स से आता है जो किसी विशेष वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रहे होते हैं। यद्यपि ये मॉडल एक नए पक्ष को प्रस्तुत करता है, किंतु ये जब ये कहता है कि मीडिया हाउस के जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं, एडिटर, जर्नलिस्ट, ब्रॉडकास्टर्स, वो बहुत हद तक स्वतंत्र होते हैं, ये छवि बहुत स्पष्ट नहीं होती, क्योंकि कई बार ये इस बात की व्याख्या करने में असमर्थ हो जाता है कि ये सीनियर मीडिया प्रोफेशनल्स कई बार दबाव की स्थिति में भी काम करते हैं। उस दबाव को की व्याख्या करने में ये मॉडल असमर्थ होता है। जो पांचवा मॉडल है वो है मार्केट मॉडल। ये मॉडल वास्तव में ये बताने की कोशिश करता है कि मीडिया जो सामान्य जनता है उनके ही दृष्टिकोणों को प्रस्तुत करती है। अभी तक हमने ये देखा कि ये मीडिया किसी विशेष वर्ग का, विशेष हितों का प्रतिनिधित्व करती है। इन सारे मॉडल्स में हमने देखा प्लूरलिस्ट मॉडल को छोड़ के, चाहे वो डोमिनेंट आइडियोलॉजी मॉडल हो, चाहे प्रोपेगेंडा मॉडल हो, चाहे एलिट वैल्यू मॉडल हो, ये तीनों मॉडल्स ये कह रहे हैं कि ये मीडिया किसी विशेष वर्ग के हितों का प्रतिनिधित्व अधिक करती है, और उसके माध्यम से सामान्य जन के दृष्टिकोण का निर्माण करती है। जबकि मार्केट मॉडल का ये कहना है कि मीडिया सामान्य जन के दृष्टिकोण का निर्माण नहीं करती, बल्कि मीडिया वो प्रस्तुत करती है जो सामान्य जन की इच्छा होती है। सामान्य जन की इच्छा का प्रतिबिंबन है मीडिया, क्योंकि मीडिया का, इस मॉडल के अनुसार मीडिया का मुख्य उद्देश्य अधिक से अधिक लाभ कमाना है, और अधिक से अधिक लाभ कमाने के लिए उसे अपने कंज्यूमर, अपने रीडर को की जो अपेक्षा है उसको पूरा करना होता है। तो इसलिए जब वो कंटेंट प्रिपेयर करते हैं इस मॉडल के अनुसार, तो जब वो कंटेंट प्रिपेयर करते वक्त किसी वर्ग विशेष के हित या किसी शक्ति के हित को ध्यान में नहीं रखते, बल्कि लाभ को केंद्र में रखकर काम करते हैं। ये जनता के समक्ष वो प्रस्तुत करते हैं जो जनता चाहती है, क्योंकि मार्केट के पैटर्न पे काम करते हैं। इस मॉडल में एक समस्या या एक सीमा ये है कि जब ये कहते हैं कि मीडिया का कंसर्न या मीडिया की मूल जो उद्देश्य है वो सिर्फ लाभ कमाना है, तो वो मीडिया हाउस की या मीडिया की सही भूमिका को प्रकाशित नहीं करते। क्योंकि पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर्स को अगर हम देखें तो हम ये पाएंगे कि वो लाभ की इच्छा से काम नहीं करते। यद्यपि उस इच्छा से पूर्ण रूप से अछूता होना वर्तमान आर्थिक परिदृश्य में संभव नहीं है, पर केवल लाभ की इच्छा से ही वो मीडिया काम करता है ये कहना उचित नहीं होगा। किंतु साथ ही साथ
इस मॉडल को जब हम इस वर्तमान संदर्भ में देखते हैं तो हम ये भी मानते हैं कि ये मॉडल वर्तमान परिस्थितियों में जो ब्रेकिंग न्यूज़ का ट्रेंड है या धीरे धीरे जो गंभीर समाचार है या गंभीर राजनीतिक जो चर्चा है उसका हम मीडिया में उसका धीरे धीरे उसका एक डिक्लाइन देखते हैं कि वो प्रवृत्तियां अब धीरे धीरे कम हो रही हैं और हम गंभीर विषयों पर विचार करने के बजाय उन विषयों पर अधिक विचार करते हैं जिस पर लोगों को अधिक आकर्षित किया जा सके। तो ये जो ट्रेंड है वो कहीं ना कहीं मार्केट मॉडल से एक्सप्लेन होता है या उससे उसकी व्याख्या हो सकती है। अब जो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है वो है न्यू मीडिया के आने के बाद पॉलिटिक्स में क्या परिवर्तन आया। न्यू मीडिया मैंने जैसे पहले ही आपको बताया, इंटरनेट मीडिया, सोशल नेटवर्किंग, ब्लॉगिंग, ये जो इंटरनेट के माध्यम से जो मीडिया है उसको हम न्यू मीडिया कहते हैं। हमने पहले भी देखा कि न्यू मीडिया ने का चरित्र कन्वेंशनल मास मीडिया से फ़र्क है। क्यों? क्योंकि वो सूचना देने वाले और लेने वाले के बीच में तुरंत अंतक्रिया करता है, तुरंत इंटरेक्शन संभव है वहाँ पर। दूसरा, ये बहुत अधिक तकनीकी है, इसलिए जो इस माध्यम को इस्तेमाल करते हैं उनके लिए तकनीक के साथ एक सामंजस्य होना आवश्यक है। तीसरी बात, ये न्यू मीडिया वास्तव में अधिक समावेशी है। क्यों? क्योंकि इसमें सभी वर्गों को अपने हित को, अपने विचार को रखने का अवसर मिलता है। इसमें प्रत्येक व्यक्ति न्यूज़ का उत्पादक भी है और उपभोक्ता भी है। जब हम ट्रेडिशनल मास मीडिया को देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि एक छोटा सा समूह है जो न्यूज़ मेकिंग का काम कर रहा है, कंटेंट राइटिंग का काम कर रहा है, और बहुत बड़ा समूह उस कंटेंट को लेने का काम कर रहा है, कंज्यूमर का काम कर रहा है, और वहाँ पर संबंध कहीं ना कहीं हायरार्किकल है या पद सोपानात्मक है। जबकि न्यू मीडिया में उस प्लेटफॉर्म को जितने इस्तेमाल कर रहे हैं वे सभी प्रोड्यूसर भी हैं और कंज्यूमर भी हैं। जब हम कोई मैसेज टाइप करते हैं, जब हम कोई स्टोरी लिखते हैं तो हम प्रोड्यूसर हैं, और जब हम कोई स्टोरी पढ़ते हैं किसी और की लिखी हुई तो हम उस समय कंज्यूमर हैं, और इन दोनों के बीच तुरंत संवाद होना संभव है न्यू मीडिया के प्लेटफॉर्म पर। जबकि परंपरागत जो मास मीडिया है वहाँ एक विशेष वर्ग का, उसको आप अभिजन कह सकते हैं, शक्तिशाली कह सकते हैं, उसका तुलनात्मक रूप से अधिक पहुंच है, और जहाँ से वे एजेंडा सेट के करने में अपना प्रभाव इस्तेमाल कर सकते हैं। जब हम न्यू मीडिया को देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि ये जो बिल्कुल हाशिए पे खड़े हुए समूह हैं, उनके जिनका शक्ति के केंद्र में प्रवेश नहीं है, वे वर्ग भी इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपने विचारों को प्रस्तुत कर सकते हैं, अपने मुद्दों को प्रस्तुत कर सकते हैं, अपनी समस्याओं को प्रस्तुत कर सकते हैं। तो इस दृष्टि से ये अधिक लोकतांत्रिक स्वरूप है इस न्यू मीडिया का। साथ ही साथ जो न्यू मीडिया का समावेशी चरित्र है वो इस मंच पर या इस माध्यम के द्वारा उन स्वरों को मुखरित करने का अवसर देता है जो वर्तमान व्यवस्था के पक्ष में न हो, जिन्हें कहीं ना कहीं असंतोष हो। हम देख सकते हैं कि बहुत सारे आंदोलन पिछले कुछ वर्षों में इस न्यू मीडिया के प्लेटफॉर्म से शुरू हुए और वो बहुत बड़े आंदोलन बने। तो ये एक नया प्लेटफॉर्म देता है हाशिए पे खड़े लोगों को, शक्ति समीकरण से दूर डिसेंटिंग वॉइसेस को अपने वॉइस को रिप्रेजेंट करने का। तो इस प्रकार कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि न्यू मीडिया के अराइवल ने उन लोगों को जो शक्ति के केंद्र से दूर हैं, जो शक्ति में नहीं है, जिनके पास शक्ति नहीं है, उनको भी एजेंडा सेट करने में
एक भूमिका देता है जो कि पहले संभव नहीं था। किंतु ये क्या मानना अनुचित होगा कि न्यू मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसका प्रयोग केवल हाशिए पे खड़े लोगों द्वारा या डिसेंटिंग वॉइसेस के द्वारा किया जाता है। ये गलत होगा, क्योंकि अगर यहाँ पर एंटी एस्टैब्लिशमेंट वॉइस को प्लेटफॉर्म मिलता है तो प्रो एस्टैब्लिशमेंट वॉइस के लिए भी ये प्लेटफॉर्म बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर हम न्यू मीडिया पर एक दृष्टि डालें, उसमें उसकी जो कंटेंट है उस पर दृष्टि डालें, तो हम ये पाते हैं कि जो शक्तिशाली वर्ग है या शक्तिशाली वैचारिक समूह है, वो इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से या इस न्यू मीडिया के माध्यम से एजेंडा सेट करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। क्यों? क्योंकि न्यू मीडिया एक ऐसा स्थान है जहाँ पर अधिक लोगों को प्रभावित करना और निरंतर प्रभावित करते रहना, हर क्षण प्रभावित करते रहना इस न्यू मीडिया में संभव होता है। दूसरी ओर ये जो शक्तिशाली समूह है या ये जो आधिपत्य वाला समूह है, उसके पास, क्योंकि इस न्यू मीडिया में हम लोगों ने पहले ही देखा कि टेक्नोलॉजी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, तो ये जो शक्तिशाली समूह है, चूँकि उसके पास तकनीकी संसाधन तक उनकी पहुंच अधिक है, तो स्वाभाविक है कि जनमत को निर्मित करने के लिए वे इस प्लेटफॉर्म को बहुत अच्छे तरीके से प्रयोग कर सकते हैं, जिसका प्रभाव दूर दूर तक लोगों तक पहुंचे। इस नए मीडिया ने वास्तव में पॉलिटिक्स में, राजनीति में अनेक नए आयामों को जोड़ा है। हम देख सकते हैं पिछले कुछ वर्षों में पॉलिटिकल कैंपेन या राजनीतिक प्रचार, राजनीतिक व्यवहार और नेतृत्व के मॉडल में भी परिवर्तन आया है। पिछले कुछ वर्षों में केवल भारत में ही नहीं, हमने वर्ल्ड वाइड ये देखा है कि अब चुनाव प्रचार या राजनीतिक प्रचार केवल फील्ड में नहीं होता, बल्कि न्यू मीडिया वो साइट बन गया है जहाँ पर पॉलिटिकल कैंपेन किए जा सकते हैं। चुनाव के समय पर जब हम देखते हैं राजनीतिक दल अति सक्रिय होते हैं सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर, क्योंकि वो मंच सबसे सरल है लोगों को प्रभावित करने का। और प्रत्येक व्यक्ति को, हर सबसे महत्वपूर्ण ये है कि धीरे धीरे न्यू मीडिया एक ऐसा प्लेस बन गया जहाँ प्रत्येक वर्ग का प्रतिनिधित्व है, प्रत्येक आयु समूह का प्रतिनिधित्व है। वहाँ वो सूचनाएं निरंतर आप तक पहुँचती हैं, तो स्वाभाविक है राजनीतिक दल वहाँ उस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करना चाहते हैं। और इसलिए अब सोशल नेटवर्किंग साइट पे, न्यू मीडिया पे पॉलिटिकल कैंपेन होते हैं, और इस प्रकार हम पॉलिटिकल कैंपेन के चरित्र में परिवर्तन पाते हैं। तो ये कहना उचित होगा कि कहीं ना कहीं न्यू मीडिया ने एक बड़ा डेमोक्रेटिक प्लेटफॉर्म दिया है। इसका चरित्र बहुत समावेशी है, इस तक सभी की पहुंच अधिक सरल है। किंतु इसका ये अर्थ नहीं है कि न्यू मीडिया के कुछ नकारात्मक पक्ष नहीं हैं। कुछ बहुत महत्वपूर्ण पक्ष जो न्यू मीडिया से जुड़े हैं, जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है, वो पहली बात कि इसमें आने वाली सूचनाएं या समाचार की जो ऑथेंटिसिटी है, वो उस पर प्रश्न चिन्ह लगाया जा सकता है, क्योंकि ये वो मंच है जहाँ प्रत्येक व्यक्ति कंटेंट राइटर है। कन्वेंशनल मीडिया में कंटेंट राइटर पे कुछ जिम्मेदारियां होती थी, उसके कुछ नियम, पर यहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति कंटेंट राइटर है। तो स्वाभाविक है जो समाचार है उसकी ऑथेंटिसिटी पर प्रश्न चिन्ह लगता है। फेक न्यूज़, पिछले कुछ वर्षों से हमने ये बहुत महत्वपूर्ण समस्या देखी है। फेक न्यूज़ वो एक न्यू मीडिया का एक नकारात्मक पक्ष है। साथ ही साथ न्यू मीडिया में जो लाइकिंग, शेयरिंग, फॉरवर्डिंग का कल्चर है, वो कहीं न कहीं एक प्रकार की क्राउड साइकी या भीड़ मनोविज्ञान को का प्रतीक है, क्योंकि यहाँ पर बहुधा ऐसा भी होता है कि सूचनाओं को लेते वक्त, सूचनाओं को आगे भेजते वक्त, सूचनाओं को लाइक करते वक्त जो निर्णय लिए जाते हैं वो बहुत रैशनल निर्णय नहीं होते या बहुत विवेकपूर्ण निर्णय नहीं होते। वो एक परंपरा के तहत एक सूचना को धीरे धीरे दूसरी जगह पहुंचाया जाता है। तो ये पक्ष हैं। और
अगर हम पिछले कुछ वर्षों में देखें तो निरंतर इस बात के लिए प्रयास किया जा रहा है कि किस तरीके से फेक न्यूज़ को कंट्रोल किया जाए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण समस्या है न्यू मीडिया के साथ, किंतु हमें ये मानना पड़ेगा कि न्यू मीडिया के आने से राजनीति पर गहरा प्रभाव पड़ा है और न्यू मीडिया की राजनीतिक व्यवस्था में एक विशेष भूमिका हो गई है। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि मास मीडिया राजनीतिक संस्कृति, राजनीतिक मत, जनमत, राजनीतिक व्यवहार को निर्मित करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। किंतु ये कैसी भूमिका निभाएगा ये इस बात पर निर्भर करता है कि राजनीतिक व्यवस्था का स्वरूप कैसा है। लोकतांत्रिक व्यवस्था जहाँ विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता महत्वपूर्ण स्थान रखती है, उसके लिए अनेक सुरक्षात्मक प्रावधान होते हैं, संविधानात्मक प्रावधान होते हैं। वहाँ पर मास मीडिया जितनी स्वतंत्र भूमिका निभाता है उतनी स्वतंत्र भूमिका निभाना किसी अथॉरिटेरियन पॉलिटिकल सिस्टम में या निरंकुशतावादी राजनीतिक व्यवस्था में कदापि संभव नहीं है। तो इस प्रकार आज की लेक्चर में हमने मास मीडिया के विभिन्न पक्षों को देखा, उसके अर्थ को समझने का प्रयास किया, मास मीडिया के प्रकार को, उसकी विशेषता को, मास मीडिया में न्यू मीडिया के आने के बाद जो परिवर्तन आए, मास मीडिया की भूमिका, मास मीडिया की भूमिका के संबंध में विभिन्न सिद्धांत और मॉडल, और न्यू मीडिया की राजनीति में क्या भूमिका है, इसको आज के लेक्चर में हमने समझने का प्रयास किया। धन्यवाद।